जनाब अब आपके कान खड़े होने वाले हैं, बड़े गौर से ये खबर सुनिएगा। India's prime minister is a golden goose. There would be no way that any country would ever give up. But you have to, I mean, as much as we may hate him, you have to give Mr. Modi credit कि उनकी जो patriotism है वो पहले आती है, ताल्लुकात बाद में आते हैं। Modi is the face of that nation and people respect Narendra Modi. And when I heard this speech that he gave today, I'm like, I'm doing it. ये बात सही है कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूँ, लेकिन मेरा दायित्व समाज के सबको साथ लेके चलने का है और यही मेरे संविधान ने मुझे यही रास्ता दिखाया है। मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है। In the speech that he just gave, I'm not leaving a minute of it out. I'm not cutting any of it like I normally would, because this is so important for women all around the world and men to know this. तो हम मोदी तो हमारा हमसाया है, हमें हमसायों के हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। मोदी को भी बुलाना चाहिए और चाय तो वो खुद बड़ी अच्छी बनाते हैं, उन्हें हम पाकिस्तानी चाय भी पिला देंगे। पाकिस्तान के साथ भारत जो है वो बैकडोर मुज़ाकरात जारी किए हुए हैं। उनके साथ बाकायदा तौर पे सफारतकारी जो है वो उनकी हो रही है। आपके मुंह से लफ्ज मोदी के खिलाफ या इंडिया के खिलाफ निकलता ही नहीं। Narendra Modi, hats off to you, my friend. Namaste. नमस्कार दोस्तों, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली एक स्पीच दिया लोकसभा में, जिसमें उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट को लेकर कुछ बातें कही और ऑपोजिशन पार्टी यानी कांग्रेस को ये समझाया कि कुछ डिसीजंस देश के हित में लिए जाने चाहिए, न कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए। मोदी जी की ये स्पीच इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल है और तमाम देश के जाने माने लोग मोदी जी की इस स्पीच की जमकर तारीफ कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया पिछले 2 से 4 दिनों से अपने मीडिया में ये बातें कर रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक बैकडोर टॉक चल रही है। हालांकि भारत में ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन हो सकता है आसिम मुनीर को समझ आ रहा हो कि इस बैकडोर टॉक्स के बहाने वो भारत से कुछ भीख भी मांग ले। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय हिंद। Wow, this Modi guy. Right now, the whole world needs to be paying attention to Modi. Well, if you can find a weak point in Modi, let me know what it is, because I haven't found it yet. I think the world's trying to find the weak point in the guy. He's taking India from rags to riches. He's one of those guys, he's talking and you quiet everything out of your mind to hear it. India's greatest asset is its 1.4 billion people. But the world knows that India's prime minister, the world knows this, just for everybody out there, the world knows this, that India's prime minister is a golden goose. There would be no way that any country would ever give up somebody who is winning like that. So the party going against Modi is, I think they don't have a shot. I wouldn't think they had a shot. And if they did, the rest of the world, if India lost Modi, the rest of the world that is anti-India would be throwing parades, because India's power would drop sufficiently. India's reputation would drop big time if Modi left. Modi is the face of that nation and people respect Narendra Modi. And when I heard this speech that he gave today, I'm like, I'm doing it. That's what I do. I evaluate, I decipher speeches, and I take out the greatest speeches that I can find, and I put them up there, and I translate them for the United States and the world to hear in English. In the speech that he just gave, I'm not leaving a minute of it out. I'm not cutting any of it like I normally would, because this is so important for women all around the world and men to know this. And once they get the hang of who this Narendra Modi is, you just know that this guy is different. Speech right here, it just out there, dude. It's out there. It's awesome. Narendra Modi, hats off to you, my friend. Namaste. Let's get into this. Ladies and gentlemen, please like and subscribe. We're not funded by anybody. We have no hidden agenda. धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरी पहचान करा दी।
ये बात सही है। मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं। धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं और अखिलेश जी मेरे मित्र हैं तो कभी कभी मदद कर देते हैं। ये बात सही है कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं, लेकिन मेरा दायित्व समाज के सबको साथ लेके चलने का है और यही मेरे संविधान ने मुझे यही रास्ता दिखाया है। मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है और इसलिए और ये संविधान की ताकत है कि मेरे जैसा अत्यंत छोटे समाज का, अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को इतना बड़ा दायित्व देश ने दिया। सरदार साहब बहुत बिल्कुल हमारे साथ ही रहेगा। भट्ट साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। जैसे हम पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, ट्रंप के पाकिस्तान आने की बात कर रहे हैं, ईरान के प्रेसिडेंट आएंगे, जब ये डील साइन होगी तो मोदी तो हमारा हमसाया है, हमें हमसायों के हुकूक का ख्याल रखना चाहिए, मोदी को भी बुलाना चाहिए। और चाय तो वो खुद बड़ी अच्छी बनाते हैं, उन्हें हम पाकिस्तानी चाय भी पिला देंगे। देखिए फिजा, बात यह है कि अभी सरदार साहब ने जो बात की ना, हिंदुस्तान मुखालफत करे और क्या वो हमें कमज़ोर कर सकता है, नहीं, ये बात इनसे जानते हैं। लेकिन आपके सवाल का जवाब जो है वो पहले ही मैं 4 लाइनों में ये बता दूं। बात यह है कि आप ज़रा भारतीय मीडिया को ज़रा गौर कर लें। इनके एक टॉप का आदमी मेजर गुरु आर्या साहब थे, जिनकी जनाब शान शौकत और उनकी गुफ्तगू का अंदाज, उनका चीखना चलाना, उनका तड़पना। अब देखे भारतीय मीडिया, मैंने तो आज तक उसके मतलब बात ही कभी नहीं की, लेकिन आज मजबूरी हो गई है। भारतीय मीडिया उनके मतलब कह रहा है बकवास, यानी लफ्ज देखे, वो कह रहा है कि वो आकर अपने टीवी चैनल पर, अपने सोशल मीडिया पर बकवास फरमाते हैं और उसका खमियाजा जो है वो इंडियन आवाम को भुगतना पड़ेगा। अच्छा, ये सारी इस तरह की लंबी बातें हैं कि खुद ही आपस में ये दस्तों गिरेबान हो रहे हैं। हाँ, आपस में मीडिया खुद ही हो रहा है, दस्तों गिरेबान हो गए। लेकिन आप जरा गौर करें कि भारतीय मीडिया की एक दूसरी स्टाइल क्या है। वो ये कह रहा है, उनके सफारतकार कह रहे हैं कि 4 या 5 मुलाकातों का वो दावा कर रहे हैं कि बैकडोर डिप्लोमेसी जो है भारत के साथ वो भी हो रही है। तो सरदार साहब से ये जानते हैं कि सरदार साहब, आपने फरमाया है कि हिंदुस्तान मुखालफत करे और क्या हमें कमजोर कर सकता है, ये नहीं। आप तो चाइना में भी रहे, यूनाइटेड नेशन में 3 साल रहे, 14 साल, फिर आप सदर आज़ाद कश्मीर बने। तो ये सारी जगहों पे फिरने के बाद आपने पाकिस्तान का एक ही मसला है, वो है हमारा कश्मीर। क्या समझते हैं ये जो बैकडोर डिप्लोमेसी वाली बात भारतीय मीडिया कर रहा है, ये सारी जंगें खत्म हो रही हैं तो क्या कश्मीर भी आज़ाद होने जा रहा है? किबला मोहतरम सरदार साहब। जी, पाकिस्तान को बहुत डिप्लोमेटिक स्पेस मिली है और उसको इस्तेमाल करते हुए इस जंग के बाद पाकिस्तान को मसला कश्मीर को आलमी एजेंडे पे दोबारा से लाना चाहिए, न सिर्फ बैकडोर डिप्लोमेसी में बल्कि फ्रंट डोर डिप्लोमेसी में, ताकि जो है कश्मीरियों को हक़ खुदरादियत मिले और हिंदुस्तान के ऊपर इस किस्म की रोक टोक हो कि वो जो जुल्म सितम उसने रवा रखा हुआ है उसे ख़त्म करे।